ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਟਾਸਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਾਲੋ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਨੇਮ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾते ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲੈਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰੈਮੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨਸ ਰਾਈਟ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਕਰਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੰਸਰਨਡ ਲੋਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਸ ਰਜਨੀ। ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਜਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 23 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਬਿਫੋਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 397 ਸੈਕਸ਼ਨ 401 CRPC ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟ क्या ਸੀ कि इस केस से वाइफ और कुड़ी ने केस पाया सैक्शन 125 CRPC का और कंसर्न कोर्ट ने इनकम ਨੂੰ प्रिज्यूम करते हुए मेंटेनेंस जो है अवॉर्ड ਕੀਤਾ। मामला अल्टीमेटली हाईकोर्ट ਵਿੱਚ ਗਿਆ। दो क्वेश्चन हाईकोर्ट ਨੂੰ तय करने ਸੀ। क्वेश्चन नंबर 1, whether an unmarried daughter can claim allowance of maintenance under section 125 subclause 1 of CRPC even after attending majority? If so, under what condition? Is there is any other enabling provision of law for a Hindu unmarried daughter to claim maintenance in addition to section 125 of CRPC? दो क्वेश्चन की सी कि अनमेरिड डॉटर जो है अगर मेजोरिटी अटेंड कर लेती है और उसमें कोई डिजीज़ नहीं है तो इस करके कोई मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है 125 CRPC ਵਿੱਚ। और ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ कि अगर 125 CRPC ਵਿੱਚ मेंटेनेंस नहीं देंगे हैं तो और कोई सैक्शन और कोई लॉ इस तरह की लड़कियां की हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, इस केस से क्यों ऐसी कि लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसिस कोर्ट ने दो मेंटेनेंस जो है ग्रांट किए सी, एक वाइफ ਨੂੰ और एक डॉटर ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ कि जो कंसर्न फैमिली कोर्ट है या कंसर्न ट्रायल कोर्ट है उसका जजमेंट जो है वो इम्प्यूग्ड है एंड इट इज़ लाइबल टू बी सेट असाइड बिकॉज इनका जो प्राइमरी अटैक सी वो इस पॉइंट से सी कि जो हस्बैंड की इनकम है वो नियरली 500 पर डे है। हस्बैंड ट्रेलिंग शॉप से जो है एज अ मैनेजर काम करता है और जो मेंटेनेंस ग्रांट किया गया है वो हायर साइड पर है, जिस कारण कोर्ट का इंटरफेरेंस चाहिए है। इन्हों का यह भी पॉइंट सी कि जो कंसर्न डॉटर है उसने मेजोरिटी जो है ऑप्टेन कर ली है और मेजोरिटी ऑप्टेन करने बाद किसी भी रूप में सैक्शन 125 CRPC ਵਿੱਚ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। और इन्होंने अपनी रिविजन ਨੂੰ सपोर्ट करने ਲਈ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ਨੂੰ साइट किया है। उसका साइटेशन है 2020 KSC पेज 235 अभिलाषा वर्सेस प्रकाश। इस विच की पॉइंट होया सी द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू गेट द मेंटेनेंस फॉर अनमैरिड डॉटर इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 20 of Hindu adoption and maintenance act, and that's why under that scenario she could claim maintenance from her father even though she is unable to maintain herself, and that's why it is declared as an absolute right, and the right given to unmarried daughter under section 20 of the act is granted under personal law which can very well be enforced by her against her father. The judgment of this court in Jagdish versus Juktavat laid down that section 20 subclause 3 of the act recognized the right of a minor girl to claim maintenance after she attained majority till her marriage. The unmarried daughter is clearly entitled to get maintenance from her father till she is married even though she has become the major, and the same is the statutory rights which is recognized by section 20 subclause 3 and can be enforced by unmarried daughter as per law. And the purpose and object of section 125 of CRPC as noted above is to provide the immediate relief to the applicant in summary manner, whereas section 20 of the concerned act contained the larger right which needs determination by a civil court. Hence, for the larger claim as enshrined
in section 20, the proceeding need to be initiated as per section 20 of the Act, and the legislature never contemplated to burden the magistrate while exercising the jurisdiction of section 125 CRPC to determine the claim as provided by the Act of 1956. We thus accept the submission of the learned counsel for the appellant that as a position of law, an unmarried daughter can claim maintenance from her father till she is married, lying on section 20 subclause 3 of the Act, provided she pleads and prove that she is unable to maintain herself, for enforcement of which rights her application suit has to be under section 20 of the Act of 1956. So the primary key is that कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक किया है कि जे के डॉटर अनमैरिड है, मेजर है, तो सैक्शन 125 CRPC विच क्लेम नहीं कर सकती है मेंटेनेंस, रादर दैन ए क्लेम कर सकती है पर्सनल लॉ विच, पर उसकी एप्लीकेशन ਲਈ उसनों स्पेसिफिक करना पो कि शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। अगर इस तरह की स्थिति फाइल तो नहीं है, इस तरह का फैक्ट वो प्रूव नहीं कर पाती है, तो उसनों कोई मेंटेनेंस जो है कोर्ट तो नहीं मिलना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्ट ने स्पेसिफिक किया सेक्शन 20 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एट द स्कोप जो है काफ़ी वाइडर है एज कंपेयर टू सेक्शन 125 ऑफ CRPC। सेक्शन 125 CRPC में होंदा की है, जो प्रोसीडिंग है वो समरी मैनर में होंदी है और इमीडिएट रिलीफ पार्टी को मिल जाए जे करके सैक्शन 125 CRPC ਨੂੰ कंसर्न स्टैचूटरी बुक 'ਚ इनकॉर्पोरेट किया है। इससे ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि प्रॉपर सूट फाइल ਹੁੰਦਾ है, उससे एविडेंस होती है और कोर्ट ਨੂੰ फैक्ट ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ बाद मेंटेनेंस केस जो है तय करना पौंदा है। तो आप स्पेसिफिक कर सकते हैं कि जो स्कोप है सेक्शन 20 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का वो काफ़ी वाइडर है एज कंपेयर टू सेक्शन 125 ऑफ CRPC। कोर्ट ने फर्दर स्पेसिफिक किया है द एक्ट ऑफ 1956 वॉज इनेक्टेड टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू द अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस among Hindu. A bare provision of section 125 of CRPC and section 20 of the Act indicates that whereas section 125 of CRPC limits the claim of maintenance of a child until he or she attain majority, and by the virtue of section 125 subclause 1 subclause C of CRPC, an unmarried daughter, even though she attain majority, is entitled to claim maintenance where such unmarried daughter is by the reason of her physical or mental abnormality or injury is unable to do so. The scheme of section 125 subclause 1 of CRPC thus clear that the claim of maintenance is depend on the majority. Once she attained the majority and she is not physical or mental disabled, then she could not claim the maintenance. So आपा ने कंक्लूड की किया है कि जे करके अगर कोई डॉटर क्लेम कर दी है मेंटेनेंस 125 CRPC विच, तो बेसिक की पार्लियामेंट ने की प्रोवाइड की है कि जे करके वो अटेंड कर लेंदी है मेजोरिटी, उसके बाद वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। मेंटेनेंस क्लेम करना है तो शी हैज़ टू शो इससे कोई फिजिकल और मेंटल जो है एबनॉर्मलिटी है। अगर फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी नहीं है तो इस करके कोई मेंटेनेंस जो है वो क्लेम नहीं कर सकती है। तो आप की कंक्लूड कर सकते हैं कि सेक्शन 125 CRPC स्कोप जो है वो काफ़ी नैरोअर है एज कम्पेयर टू सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, क्योंकि उस एक्ट विच की है कि पर्सनल व्यवस्था की गई है हिंदू ਲਈ कि अगर कोई डॉटर है अनमैरिड है और मेजर भी हो गई और उसके कोल कोई साध्य नहीं है मेंटेन करने ਲਈ, तो इस करके कोर्ट ਨੂੰ जो है इंटरवेन करना पो। बट यह व्यवस्था जो है सेक्शन 125 CRPC विच नहीं है। वंस शी अटेंड द मेजोरिटी वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। मेंटेनेंस क्लेम करना है 125 CRPC विच तो उसको शो करना पो कि उसको कोई फिजिकल और मेंटल जो है डिसेबिलिटी है। क्लियर जी, चलें आगे। चलिए फ्रेंड्स, उन्होंने एक आर्गूमेंट और भी सी कि ऐसी कोई भी एविडेंस फाइल उत्ते नहीं है जे करके कंसर्न अपोजिट पार्टी प्रूव कर सके कि जो कंसर्न डॉटर है उसमें कोई फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी है। जे करके कोई फैक्ट इस तरह का रिकॉर्ड तो नहीं है, तो उस सिनेरियो विच जो कंसर्न डॉटर है वो 125 CRPC विच आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। फिर कंसर्न कोर्ट ने इस प्रोविजन उत्ते इंटरप्रिटेशन किया। कोर्ट का की व्यू सी कि सैक्शन 125 CRPC विच अनमैरिड डॉटर है आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। उसको अगर मेंटेनेंस क्लेम करना है तो उसको शो करना पाओ कि उसको कोई फिजिकल और मेंटल जो है डिसेबिलिटी है। कोर्ट ने की स्पेसिफिक किया है कि मेनली ऑन द ग्राउंड दैट शी इज़ अ डॉटर एंड शी इज़ अनमैरिड, शी कुड नॉट क्लेम द मेंटेनेंस। फॉर मेंटेनेंस शी हैज़ टू शो कि दैट शी इज़ फिजिकली मेंटल डिसेबल आफ्टर अटेंडिंग द मेजोरिटी एंड दैट्स वाई शी कुड नॉट अर्न। जे करके रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है और इस तरह के एलिमेंट फाइल तो नहीं है तो वो किसी भी रूप में सेक्शन 125 CRPC में मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। कोर्ट ने स्पेसिफिक किया द लीगल पोजिशन इज क्वाइट डिफर एज फार एज सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इज कंसर्न। उससे की पोजीशन है कि अनमैरिड डॉटर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी इफ शी शोज दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि सेक्शन 125 चे और सेक्शन 20 विच स्कोप जो है काफ़ी डिफर है। उस विच की है कि
कंसर्न डॉटर आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी इफ शी इज़ नॉट फिजिकली और मेंटल डिसेबल शी कुड नॉट क्लेम मेंटेनेंस। और इस विच की है कि इवन आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी शी इज़ अनेबल टू क्लेम मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों एट द स्कोप जो है वो डिफर है। तो तुम एक गल समझ लो इस केस से क्यों है कि डॉटर ने जो है क्लेम मूव किया 125 CRPC विच, तो कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि बिफोर अटेंडिंग मेजोरिटी यू कुड क्लेम बट वंस यू अटेंड द मेजोरिटी और थानू कोई फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है, तुसी किसी भी हालत में जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑर्डर को मॉडिफाई किया और कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि टिल अटेंडिंग अ मेजोरिटी शी कुड हैव, और जदों भी ये लड़की मेजर हो जाती है उस पॉइंट तो ये मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। और कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन इस करके जो है पास किए। तो आप कंक्लूड की कर सकते हैं कि अगर कोई डॉटर अनमैरिड है, उसकी मेजोरिटी आ गई और उसमें कोई फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, तो आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी 125 CRPC विच मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। तो साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट डिस्कस थोड़े राइट्स को लेकर, तुसी घबराओ ना, लड़ो। अगर तुसी इस तरह की प्रॉब्लम जूझ रहे हो तुसी फाइट करो, अपने राइट्स को इन्फोर्स करो, डेफिनेटली आप जितेंगे, डेफिनेटली जो है मैन साइड जीतेगा। तो साथियों घबराने की लोड़ नहीं, तुसी राइट को इन्फोर्स करो और थानू कोई भी दिक्कत आती है तुसी इस रूलिंग को वापस पढ़ो, इंटरप्रिटेशन करो, कोर्ट को कन्विंस करो। तो साथियों तुसी इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस करके जो भी लीगल अपडेट आते हैं उसकी जानकारी थानू एज सून एज पॉसिबल जो है मिल सकूँ। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के नाल। टिल देन जय हिंद, जय भारत।